Happy Teachers Day, because you all know today we are celebrating the Teachers Day. मुख्य रूप से मैं अपने गुरुओं को, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ और मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, और फिर आप सबों को, जिनके लिए मैं इस उम्मीद से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ कि आपको ये किसी न किसी रूप में मदद करे. So as you can see, today we shall be talking on critical research paradigm. With the help of previous lectures, we decided and we identified that we shall be talking in terms of only 4 research paradigm. 2 हमने कवर भी कर लिया है, positivist paradigm and interpretivist paradigm. There is the third one we shall discuss today, that is critical research paradigm, followed by pragmatic research paradigm. So we have 4 paradigm, though there are so many paradigms as I told, and there is a concept of paradigm war as well. So critical research paradigm, as we discussed in previous lectures, that is not being considered as a research paradigm. It is being considered as a social movement. Though the content, the area, the critical research paradigm have chosen is very important. So outrightly we cannot say that this has some limited research purposes, क्योंकि जो सोशल इशूज हैं, जो मार्जिनलाइज का कंसेप्ट है, जो ऑपरेशन का कंसेप्ट है, जो डिप्रेशन या डिप्राइव्ड या डिसेबिलिटी या इंक्लूजन का कंसेप्ट है, ये सारा कंसेप्ट स्टेट, सोसाइटी, पावर, मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड, ये सब ऐसा कंसेप्ट है कि इस पे सैकड़ों करोड़ों रिसर्च वर्क किए जा सकते हैं. एंड सो इन दिस perspective, it is very important. So with this 2-3 notes, that 4 out of 4 research paradigm, the third research paradigm which we are going to discuss today is a critical research paradigm, and its purpose is to revolutionize, to revolt against any sort of oppression and deprivation. Be academician, either from the field of sociology, psychology, or education, can utilize this research paradigm to investigate so many problems. So as we usually do, firstly we shall outline the lecture. So let us outline the lecture. So critical research paradigm, firstly we shall learn critical research paradigm as a concept. मुख्य बातें इसी में आएंगी कि है क्या, इसका मतलब क्या है, आदि आदि. So it is all about the scope and boundary of the concept. Then we shall discuss a new concept has emerged, that there is critical and non-critical paradigm, as like positivist and interpretivist paradigm. We shall discuss. Then characteristics of critical research paradigm. And then elements of research paradigm and critical research. और एलिमेंट्स वही 4 जो हम लोगों करते रहे वो भी देख सकते हैं: ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी. देन इट्स मेरिट्स और स्ट्रेंथ यू कैन से, और सब में हम लोगों ने स्ट्रेंथ लिखा था. देन इट्स लिमिटेशंस, एंड एट द लास्ट कौन कौन से रिसर्च मेथड्स हैं जो प्लेस हो सकते हैं क्रिटिकल पैराडाइम में, यदि ये मानता है कि मेथोलॉजी से ये गवर्न नहीं होता है.
So this is all about this outlining part of the lecture. So as you have seen, we have outlined the lecture. Firstly, we shall learn critical research paradigm as a concept. यद्यपि हमने आपको ये मूवमेंट है, सोशल एस्पेक्ट पे बल दे के रिसर्च करने की बात है, राजसत्ता के अगेंस्ट में काम करेगा, आदि आदि बातें कही, तो एक आउटलाइन आपको मिल गया, तो उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। फिर एक नया कंसेप्ट क्लेम कर रहे हैं लोग कि आने वाले दिनों में जैसे पॉजिटिविस्ट पैराडाइम है और इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम है, वो रिमूव हो जाएगा। उसके जगह पर जो कैटेगराइजेशन आएगा, दो मेजर कैटेगराइजेशन ऑफ रिसर्च पैराडाइम, दैट विल बी क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल पैराडाइम। दो आई डोंट एग्री, फिर भी इसकी चर्चा चल रही है, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पैराडाइम में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, फिर उसके मेरिट्स पे बात करेंगे, हम लिमिटेशंस पे बात करेंगे। और जब आप कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, उसको उठा के मेरिट्स और लिमिटेशंस में भी आप ले जाएंगे, तो वहाँ भी कुछ चीज़ों को आप और ऐड कर सकते हैं। सो वी शैल टॉक अबाउट मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एज यू मस्ट बी नोइंग दैट वी शैल ऑल्सो टॉक इन टर्म्स ऑफ ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी एंड एक्जियोलॉजी किस तरह कार्य करता है। यद्यपि इसका नेचर फ्लेक्सिबल है, क्योंकि शुरू के तीनों यदि हम मिक्स्ड भी कह दें तो पॉजिटिविस्ट, एंटी पॉजिटिविस्ट और फिर मिक्स्ड मेथड्स को भी इम्प्लाई करने की बात करता है। कोई बहुत फ्लेक्सिबल इसका है नहीं है। मैथोलॉजी के बारे में भी इसका जो ओपिनियन है बहुत वाइड है किसी भी दूसरे रिसर्च पैराडाइम से। फिर भी हम लोग इसके मेथोडोलॉजिकल पार्ट पे भी बात करेंगे। यद्यपि वो जो मेथोडोलॉजी हम लोग मेंशन करेंगे इसमें, उसमें से एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए वैसे वर्ड तो जाने पहचाने होंगे, लेकिन एज ए रिसर्च मेथड्स वो आपके लिए जाने पहचाने नहीं होंगे। सो इन दिस पार्ट वी हैव outlined the lecture and have come to know what we are going to do today. So thank you for this part. We shall discuss the concept, critical research paradigm as a concept in the separate lecture. Thank you for this part.